So our last topic was about interference we completed, and now let us discuss about yet another phenomena of light, a wave phenomena called as diffraction of light. Try to understand this phenomena carefully. Now this phenomena is again a microscopic phenomena in case of light, but this phenomena can be easily observed, and it is a macroscopic phenomena in case of sound waves, water waves, even it is observed in matter waves, as we have discussed in the chapter of dual nature. Now this phenomena is again another phenomena which proves that light is a wave. Light का एक wave nature establish होता है, but again this phenomena does not prove that whether light is a transverse wave or a longitudinal wave, because as I said, it is observed in case of sound waves, which is a longitudinal wave. It is observed in case of water waves, which is a transverse wave. So this phenomena is visible in transverse as well as longitudinal wave, and since it is visible in light also now, it has been observed in light also, so it doesn't prove whether light is a transverse or a longitudinal wave. Now what is this diffraction phenomena? ये होता क्या है diffraction phenomena? See, you can see some figures I have shown. In this figure I have shown an obstacle here. ये एक object है जिसमें सोचिए कि एक छोटा सा hole है. This is one small hole in this, a gap is there. You can imagine this obstacle is like a cardboard, and in that there is a small opening. This is a small opening. So this is an obstacle. ये एक opaque body है through which light cannot pass. Now when a source of light is put in front of it, as we know that light travels in a straight line. उसका एक हमने principle पढ़ा है, rectilinear propagation of light. Light travels in a straight line. Now what was expected is कि when source of light is kept here, a point source, light after passing through the edges of this obstacle, इसके corners से जब light गुजरेगी, उन corners को touch करते हुए straight light चली जाएगी, है ना? And ये जो बीच में opening है, जितना ये opening है इस हम diverging light को जो हम देख रहे हैं, वो एक point से, for example ये एक point P मैंने मार्क किया, एक point Q मार्क किया. It was expected कि ये point P और Q के बीच में जो region है, वो एक illuminated region होगा. And beyond that it should be a dark region. उसको हम कहेंगे उसका geometrical shadow region. ऐसा expected था, है ना? कि इतने रीजन में लाइट होगी और इसके ऊपर, उसके नीचे और उसके चारों तरफ, यू कैन से इस रीजन के अराउंड जो चारों तरफ स्पेस था, उस स्क्रीन पर, ये एक स्क्रीन मैंने दिखाया, उस स्क्रीन पर वो डार्क रीजन होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड था. ऐसे इसका उल्टा दिखे यहाँ पर दिखाया मैंने कि ये एक ऑब्स्टेकल है. हाँ, ये एक छोटा सा, यू कैन से एक सर्कुलर सा एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर सा एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, और उसके सामने हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा. तो ये ऑब्जेक्ट जो है लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा, जाने नहीं देना चाहता होगा. इसके जो एजेस हैं, वो जो ऑब्जेक्ट का सपोज जो बाउंड्री है, लाइट उस बाउंड्री के चारों तरफ से क्रॉस करेगी, मतलब लाइट इस ऑब्जेक्ट के अराउंड क्रॉस करते हुए अगेन ये जो मैंने पॉइंट सपोज मार्क किए P और Q, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन अगर हम लेते हुए चले, हाँ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कि लाइट P और Q के बीच में एक, यू कैन से एक स्पॉट लाइट का मतलब मिसिंग रहेगा, वहां पर एक डार्क रीजन दिखाई पड़ेगा, उसको हम ज्योमेट्रिकल शैडो कहेंगे, और उसके आसपास का जो रीजन होगा, उसके बाहर का जो रीजन होगा, वहां इल्यूमिनेशन होगा. ऐसा हम लाइट के इस प्रिंसिपल से समझ रहे थे कि जब लाइट हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसा होना चाहिए था. बट क्या ऐसा प्रैक्टिकली हमें दिखा? प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया हमने कि व्हेन एन ऑब्स्टिकल इज केप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, एक ऐसा ऑब्स्टेकल जिसमें एक परफोरेशन था, एक छेद था, है ना, या एक ऐसा ऑब्स्टेकल जो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, उसके आसपास से लाइट गुजर सकती थी, कैसा भी ऑब्स्टेकल हमने किया अगर उसके सामने रखा, इट इज ऑब्जर्व दैट एट द एजेस ऑफ द ज्योमेट्रिकल शैडो, जो ज्योमेट्रिकल शैडो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उसके चारों तरफ का शैडो रीजन था, बीच में इल्यूमिनेटेड था, यहाँ बीच में शैडो था, चारों तरफ इल्यूमिनेटेड रीजन था, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो शैडो है वो शार्प हो, लाइट सीधी सीधी चलती है और शार्प सा एक शार्प एज वाला एक शैडो बनना चाहिए. बट क्या देखा गया जब हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल शैडो की बाउंड्रीज हैं, जो एजेस हैं उसके, वहां पर लाइट की इंटेंसिटी में ग्रेजुअल चेंज है, एक शार्प एज नहीं दिखाई पड़ रहा. अ ग्रेजुअल चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ ए शार्प एज ऑफ द शैडो. शैडो का एक शार्प एज बने, उसकी जगह हमें क्या दिखाई पड़ता है कि जहां पे लाइट का मतलब जो ऑब्स्टेकल का शैडो बनना था एजेस पर, वहां पर वो शार्प एजेस ना होके वहां पर इंटेंसिटी में ग्रेजुअल चेंज हो रहा है. और कैसा है ग्रेजुअल चेंज, देखिए वो भी ध्यान दीजिए वाली बात है, विच शोज दैट
अब वो ग्रेजुअल चेंज कैसा था कि जैसे यहां पर देखें, अगर ये इल्यूमिनेटेड रीजन होना था, ये एक इल्यूमिनेटेड स्पॉट जैसा दिखाई पड़ना चाहिए था, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके अराउंड हमें डार्क रीजन नजर आना था। लेकिन क्या दिखा कि जहां शैडो खत्म होना, मतलब जहां से शैडो शुरू होना था, शैडो रीजन में भी कुछ इल्यूमिनेशन है, कि मतलब लाइट जैसे कि उस शैडो में घुस गई है। यहां पर भी ऑब्स्टेकल का शैडो जो PQ तक होना चाहिए था, इट इज सीन कि लाइट पीक से नीचे, यहाँ Q से ऊपर थोड़ा सा रीजन जो शैडो का है, वहां पर भी लाइट एंटर कर गई है। तो व्हाई हैज लाइट कम इनटू दैट शैडो रीजन? लाइट शैडो रीजन में आई है, इसका मतलब इट्स लाइक कि देयर इज सम बेंडिंग ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस नियर द एजेस, कि जब लाइट इन ऑब्स्टेकल्स के एजेस से, कॉर्नर्स के पास से गुजर रही है, तो वो एक शार्प एज ना बना के जहां शैडो बनना था, शैडो में लाइट एंटर कर जानी है। शैडो रीजन में लाइट का पेनिट्रेट कर जाना, ये जो बेंड हो जाना था, इसी फिनोमिना का नाम रखा गया डिफ्रैक्शन। तो इसको अटेम्प्ट किया न्यूटन ने भी अपने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से, बट ही कुड नॉट सक्सीड, एंड देन इसको अटेम्प्ट किया गया बाय यूज ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। इसको हाइगन्स वेव थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। तो हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है इस प्रकार का एक फिनोमेना इन विच लाइट इज से पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट, में भी एक रेक्टेंगुलर स्लिट है, पतला सा एज है, उसके थ्रू लाइट को हमने पास ऑन किया है ना, और स्लिट में से लाइट को हम एक स्क्रीन पर रिसीव करें, एंड लेट अस सी कि उस स्क्रीन पर जो हमें लाइट मिली, उस स्लिट से बाहर आने के बाद उसका एक शार्प एज शैडो बना या नहीं बना, और नहीं बना तो कैसा बना, उसका पैटर्न कैसा बना, वो जो शैडो रीजन में लाइट आई वो कैसी बनी, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और उसमें हम बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी समझेंगे। हम उन एजेस के बाहर जो लाइट की इंटेंसिटी में चेंजेस आ रही हैं उनको भी ऑब्जर्व करेंगे। तो एट ए ग्लांस, मैक्रोस्कोपिकली अगर हम इसको देख रहे हैं, एक नॉर्मल नेकेड आई से अगर हम देख रहे थे, तो हमें दिखाई पड़ा कि वो जो शैडो की एजेस थी वो शार्प नहीं थी, rather shadow region में, always in the shadow region it was seen that light obstacles के edges से थोड़ा सा मुड़ जाती है, shadow region में मुड़ जाती है, यहां से shadow region में, obstacle के edges से shadow region में मुड़ जाती हैं, और intensity में gradual change नजर आता है। But you know, when these phenomena were carefully observed under the microscope, when they were observed carefully, when they were seen, it was seen that it was not that it was a continuous decrease, a uniform decrease नहीं था। In that region where the light intensity was visible in the shadow region, here it was seen that there were some dark and bright fringes like pattern, कुछ alternate fringes दिखाई पड़ रही थी, कुछ dark regions patterns नजर आ रहे थे ना। एक बात तो एक प्रॉब्लम तो यही पहले हमारे सामने है कि वो लाइट मुड़ी क्यों, है ना, और लाइट अगर मुड़ भी गई है तो वो लाइट मुड़ते मुड़ते वो ऐसे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस क्यों बना रही है, मतलब कुछ डायरेक्शंस में मुड़ के गई और कुछ डायरेक्शंस में नहीं गई, ऐसा क्या हो रहा है, ये फ्रिंज पैटर्न्स क्यों बने? ये जो एक फ्रिंज का पैटर्न दिखाई पड़ा है, इन्हीं को हम डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस कहते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट दैट एक्चुअली, कि वो डार्क एंड ब्राइट, पहली बात तो लाइट का बेंड होना, और देन उस इल्यूमिनेटेड रीजन से, इस डार्क रीजन में लाइट का पेनिट्रेट करने के बाद उसमें एक नॉन यूनिफॉर्म, एक फ्रिंज पैटर्न बनाना, ये कैसा था? क्या वो इंटरफेरेंस के फ्रिंज पैटर्न जैसा था या कुछ और फ्रिंज पैटर्न था? दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इन दिस फिनोमेना। लेट अस प्रोसीड। So let's see what was seen in a single slit diffraction experiment. Means we will be discussing about in our syllabus we are having diffraction of light through a single slit, एक narrow slit है। देखिए पहले तो एक experimental setup क्या है वो समझ लेते हैं। I have shown one small narrow slit, एक छोटा सा, एक narrow सी, सोचिए कि एक slit है, एक कार्डबोर्ड है, उस पर एक narrow सी, एक पतली सी एक slit है। You can imagine a vertical slit, एक narrow सी एक blade like edge है वहां पर। Okay, and we allow some parallel wavefronts of light to fall on it, and this parallel wavefronts is of a monochromatic light, means एक single wavelength की light है हमारे experiment में, उसका एक ही wavelength है, एक source है, monochromatic source है। Suppose वो source हमने एक lens के focus पे रख दिया है, और वो rays of light after coming out through the lens become parallel rays. It means the wavefronts which are approaching on the slit are parallel wavefronts. So these parallel wavefronts are falling upon this slit, एक छोटी सी ओपनिंग है ना। उस जो स्लिट है, उस स्लिट में से जब लाइट को बाहर आना था, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि उस स्लिट में से लाइट बाहर आएगी और एक स्पॉट ऑफ लाइट सामने दिखाई पड़ जाएगा, एक स्पॉट दिखाई पड़ेगा, उसके चारों तरफ
पूरा डार्क होगा। एक लाइन, जैसे मान लीजिए अगर ये स्लिट, ये ऊपर से देख रहा हूं मैं, ठीक है, एक ऐसी स्लिट है, एक नैरो सी वर्टिकल स्लिट है, उस पर पैरेलल वेव फ्रंट्स आई, तो एक नैरो स्लिट से लाइट थोड़ा सा ऐसे बाहर आएगा, एक ब्राइट पैच, रेक्टेंगुलर सा पैच दिखाई पड़ जाएगा, उसके बोथ साइड्स हमें डार्क नजर आना चाहिए था। ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बट प्रैक्टिकली क्या नजर आया हमें, उस ऑब्जर्वेशंस को भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है। देखिए यहाँ पर आपको जो मैंने दिखाया है कि जो ये वेव फ्रंट इस स्लिट के बाद बाहर आया, वो अब प्लेन वेव फ्रंट्स नहीं है, एक्चुअली वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं। आपको ये कर्व जो नजर आ रहे हैं, यू कैन इमेजिन कि ये सिलेंडर्स हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स जैसे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये एक वर्टिकल सा, एक नैरो सा वर्टिकल स्लिट है, हाँ, और मतलब ऐसा समझिए, मैं इसको ऐसा दिखाऊं, ऐसा आपको कुछ लाइक दिस इज एन ऑब्स्टिकल, और इस ऑब्स्टिकल में यहां पर एक सोचिए नैरो सी स्लिट काट दी गई है ऐसे, ठीक है, एक नैरो सी स्लिट है, एंड ओवर दैट देन सम पैरेलल वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट। अब वो जो पैरेलल वेव फ्रंट स्लिट से बाहर आ रही है, वो कैसे आ रही है, क्या वो फिर पैरेलल आ रही है? पैरेलल नहीं आ रही, नाउ दे आर इमर्जिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स। एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, उसके आगे एक और सिलेंडर एंड सो ऑन। ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स करते बनते बनते आगे वो स्क्रीन पर पहुंची। नाउ यू कैन नोटिस दैट ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स जो आगे चल रही है, बढ़ रही है, वो बीच बीच में पंक्चर्ड है, कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा दिख रहा है। जहां पर ये लाइंस आपको दिख रही है, दैट मीन्स वो वेव फ्रंट एग्जिस्ट कर रहा है। जहां वो नहीं दिख रही है बीच बीच में, दैट मीन्स वो वेव फ्रंट वहां पंक्चर्ड है, वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शंस, जिस डायरेक्शंस में ये वेव फ्रंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं? और जहां एग्जिस्ट कर रही हैं, यहां ये तो ठीक है, समझ में आया, स्लिट के सामने यहाँ पे वेव फ्रंट आना था, वो तो आया, ये क्यों आ रही है, यहां पर क्यों जा रही है, और ये बीच में से गायब क्यों हो गई है ना? यही पैटर्न हमें समझना था, ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो लाइट का यहां एग्जिस्ट करना, इसके बियॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करना था, तो वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है? लाइट स्पॉट के, इस सेंट्रल स्पॉट के बियॉन्ड शैडो रीजन में क्यों गई, पहली बात। दूसरी बात, अगर गई भी तो वो ऐसे ऑल्टरनेट पैचेस बनाते हुए क्यों गई, दूसरी बात। ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमें इस डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में समझना है ना। इसके अलावा ये जो पैटर्न्स आपको दिखाई पड़े, जब हमने इन पैटर्न्स को, इनकी विड्थ को देखा, इनकी इंटेंसिटीज को ऑब्जर्व किया, तो कुछ और भी बातें हमें दिखाई पड़ी। देखिए हमें जो दिखाई पड़ रहा है इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद, उनको मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में लिखा। देखिए क्या क्या है। पहली बात कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट, स्क्रीन पर, जो स्क्रीन पर स्लिट के ठीक सामने, ये जो मैंने दिखाया है, ये ब्लॉक जो दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लॉक एक्चुअली मैंने, स्क्रीन ऐसा है, स्क्रीन पर तो यहां दिख रहा होगा, मैंने उसको आपको ऐसा दिखाया कि स्क्रीन पर नजर क्या आ रहा है, ठीक है। मतलब सोचिए कि स्क्रीन तो ऐसा है, स्क्रीन पर यहां पे बने होंगे ऐसे पैचेस, वो पैचेस यहां से आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे, मैंने इसको सपोज ऐसा दिखा दिया कि स्क्रीन पर कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो स्क्रीन पर यहां पर एक ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर थोड़ी सी लंबी स्लिट है तो थोड़े से लंबे पैचेस दिखाई पड़ेंगे, लाइक दैट। ओके, सेंटर के सामने, स्लिट के ठीक सामने, यहां पर सेंटर पे हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट ए ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड। ये ब्राइट स्पॉट है, ठीक है। जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं वो ब्राइट स्पॉट्स है। ओके, यहां पर डायग्राम में ये बिल्कुल ऐसा मैंने शार्प एज बना दिया। रिमेंबर ये भी फिगर ऐसा है, मैंने बनाने के लिए बनाया। ये शार्प एजेस यहां पर भी नहीं है। यहां से ये ब्राइटनेस कम होते होते यहां पर आके फिर मिनिमम हो गई है, फिर यहां से लेकिन ब्राइटनेस बढ़नी शुरू हुई, मैक्सिमम हो गया, फिर मिनिमम होकर यहां फिर मिनिमम हो, मतलब इस तरह से है वो। ओके, आप उसको गूगल करेंगे तो आपको इस तरह के फ्रिंज पैटर्न्स थोड़े से फिगर्स में, इमेजेस में अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आएगी वो फ्रिंज पैटर्न्स कैसी हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्लिट ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा या इसको जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कहते हैं। मतलब इसको हमने काउंटिंग में फर्स्ट नहीं कहा, इसको जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कहा। नाउ इस सेंट्रल मैक्सिमा के चारों तरफ, मतलब बोथ साइड्स, वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो डार्क रीजन है, बट हुआ ऐसा नहीं। क्या दिखाई पड़ा हमें? ऑन बोथ द साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लाइज फ्यू अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। इस सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड्स, इधर भी हमें कुछ डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसी कुछ फ्रिंजेस नजर आई। ये क्यों नजर आई? दैट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। देन
इनकी इंटेंसिटीज की जब हमने देखी बात की तो सेंट्रल मैक्सिमा इज फाउंड टू बी ऑफ मैक्सिमम विड्थ, सबसे चौड़ा ये दिखाई पड़ा, इसकी जो चौड़ाई थी, विड्थ थी, वो सबसे ज्यादा थी। वी विल इवन कैलकुलेट द विड्थ ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा कि वो कितना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा सबसे वाइड था, ठीक है, मैक्सिमम विड्थ एज वेल एज विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी, और सबसे ब्राइट भी था। तो वो तो आप समझ रहे होंगे कि सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट क्यों है, क्योंकि स्लिट के ठीक सामने है ना, तो उसकी डिस्टेंस सबसे कम है, इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, तो ये सबसे पास था, तो इसलिए सबसे ज्यादा ब्राइट भी है। और भी रीजन हम देखेंगे कि उसकी ब्राइटनेस ज्यादा क्यों है, ठीक है, इट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। जबकि इसके बाद जो हमें दिखाई पड़ा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में, द हायर ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब उसके बाद जो ये वाला ब्राइट फ्रिंज है उसको हम फर्स्ट मैक्सिमा कहते हैं। डार्क के बाद फिर एक और मैक्सिमा दिखाई पड़ा, उसको हम सेकंड मैक्सिमा, तो इनको हायर ऑर्डर मैक्सिमा कह रहे हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। ये जो हायर ऑर्डर मैक्सिमास थे उनकी विड्थ इस सेंट्रल मैक्सिमा से कम थी, ठीक है, और वो डिक्रीज हो रही थी, ये थिन होते चले जा रहे थे, और थिनर एंड इतने थिन हो गए कि वो लगभग खत्म हो गए। फिर मतलब देयर आर फ्यू ब्राइट फ्रिंजेस, ओके, हैव ए डिक्रीजिंग विड्थ एंड रैपिडली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। इसके कंपैरिजन में, सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में इसकी इंटेंसिटी काफी कम होती है। मतलब ये डार्क नहीं है, ब्राइट है, लेकिन वो इतना ब्राइट नहीं है, लेकिन इस डार्क से ब्राइटर है, इसलिए हमें यहां पर एक ब्राइट स्पॉट दिखता है। इसके बाद जो ब्राइट है वो इसके कंपैरिजन में और कम ब्राइट है, तो इसका मतलब वो इस डार्क के लगभग आने वाला है पास। तो ऐसे कुछ ब्राइट्स के बाद हमें दिखता है कि जो डार्क और ब्राइट थे उनके बीच में डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी लगभग खत्म हो गया, तो हमें कुछ ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई पड़ती हैं आफ्टर फ्यू, नॉट लाइक इंटरफेरेंस में आपको बहुत सारी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखती थी, है ना। मैं इंटरफेरेंस से और डिफ्रैक्शन के फ्रिंजेस का डिफरेंस भी अभी आपसे बात करता हूं। तो द हायर ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेस हैव डिक्रीजिंग विड्थ एंड रैपिडली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, जिसकी वजह से क्या हुआ, डार्क फ्रिंजेस वर नॉट कंप्लीटली। और दूसरी बात क्या थी कि डार्क जहां पर था, जिसको हम डार्क फ्रिंजेस कह रहे थे, जैसा इंटरफेरेंस में होता था कि डार्क पर डार्क होता था, है ना, वहां कंप्लीटली डार्क हो सकता था, लेकिन यहां पर डार्क फ्रिंजेस आर सीन टू बी नेवर कंप्लीटली डार्क, वो पूरी तरह से डार्क नहीं थे। यहां पर ये डार्कनेस जो है धीरे धीरे ऑफकोर्स बढ़ रही है, जैसे जैसे शैडो रीजन में जाएंगे डार्कनेस बढ़ती जा रही है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज घट रही है, लेकिन साथ साथ ब्राइट फ्रिंजेस की भी इंटेंसिटी घट रही है। ओके, तो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, आफ्टर फ्यू डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दे बिकम ऑलमोस्ट ऑफ सेम इंटेंसिटीज, मतलब ब्राइट भी उतने ही डार्क हो जाते हैं जितना कि डार्क है, तो हम वो कहते हैं फिर वो शैडो रीजन आ गया, कंप्लीट शैडो रीजन आ गया। लेकिन इस रीजन में जहां पर हमें कुछ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नजर आई, तो वो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, मैक्सिमा, ये क्यों नजर आए, ठीक है, यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ना। यहां पर एक छोटी सी बात पहले हम डिस्कस कर लें कि ये जो फ्रिंज पैटर्न नजर आ रहा है हमें इंटरफेरेंस जैसा डिफ्रैक्शन में भी, इनको हम डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस कह रहे हैं। ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस से देख लीजिए कैसे डिफरेंट है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि सारे ब्राइट एंड डार्क, चाहे वो सेंट्रल था या फर्स्ट था, 15th था, 20th ब्राइट था, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस वर ऑफ सेम विड्थ एंड ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैड इवन सेम इंटेंसिटी। बहुत दूर जाएंगे तो डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता था, लेकिन अदरवाइज इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस विद इन द स्मॉल रीजन वर ऑलमोस्ट द सेम, है ना। एंड ऑल द डार्क फ्रिंजेस वर ऑल्सो ऑफ सेम इंटेंसिटीज और सेम डार्कनेस, एंड इवन इन इंटरफेरेंस इट वॉज पॉसिबल कि अगर वहां दो सोर्सेज ऑफ लाइट होती थी, दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट की अगर इंटेंसिटी सेम थी तो डार्क फ्रिंजेस वर कंप्लीटली डार्क इवन। यहां लेकिन डार्क फ्रिंजेस वर फाउंड टू बी नॉट कंप्लीटली डार्क, रादर जो फर्स्ट मिनिमा है वो कंपैरेटिवली सबसे ब्राइटर है, ब्राइटर मतलब डार्क्स में सबसे ब्राइटर है, इसके कंपैरिजन में तो वो डार्क है, लेकिन वो डार्क रीजन्स में से फर्स्ट मिनिमा की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी इससे कम हो जाती है, एंड सो ऑन। मतलब डार्क की भी इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है, ब्राइट्स की भी इंटेंसिटी लगातार कम होती जा रही है। एक स्टेज आती है कि दोनों इंटेंसिटीज लगभग बराबर हो जाती हैं, एंड ब्राइट एंड डार्क को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसलिए हमें यहाँ पर only few dark and bright fringes were observed. तो इस differences के basis पर, मतलब all bright fringes were not of same width, all bright fringes were not of same intensities, intensity of bright fringes rapidly decreases. तो इस तरह के जो differences हमें diffraction से और interference fringes के नजर आए, तो इससे क्लियर हो गया कि ये फ्रिंज पैटर्न्स का जो कारण है वो इंटरफेरेंस वाला जो कारण था हमने पढ़ा था वो तो नहीं है। तो ये डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस क्यों बन रही हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफ्रैक्शन फिनोमेना? दिस इज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो हमने अभी तक ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं यहां पर। नाउ लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट?
Now let us see what was the explanation given. ये जो फिनोमेना हमने देखा जिसमें ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनी, ये क्यों बनी, इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया. Now this phenomena was explained by using Huygens wave theory. Now क्या पढ़ा था हमने Huygens wave theory में? Huygens wave theory में अब तक आपने ये पढ़ा था कि Huygens says कि source of light produces light waves which travels in the form of a wave front. वो वेव फ्रंट्स के फॉर्म में चलती हैं, वो स्फेरिकल हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स हो सकती हैं. बट हमने ये भी पढ़ा था उसके अजम्पशंस में कि एक वेव फ्रंट के बाद एक अगला वेव फ्रंट कैसे बनता है. एक वेव फ्रंट बन गया, वो सर्कुलर स्फेरिकल किसी भी शेप का था. अगला वेव फ्रंट बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वेव फ्रंट, प्रीवियस वेव फ्रंट जनरेट्स और प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेव्स. उसके हर पॉइंट से सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं एंड ये सेकेंडरी वेव्स ओवरलैप करती हैं. ओवरलैप मीन्स दे together superimpose together with each other and then that superposition of secondary waves results in the formation of the new wavefront. तो देखिए, अगर एक पहला वेवफ्रंट अगला वेवफ्रंट बनाने जा रहा है, अगर पहले वेवफ्रंट को हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, वो मतलब उसको हमने अलाउ किया या डिस्टर्ब किया, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट वेवफ्रंट जैसा पहला वेवफ्रंट था वैसा का वैसा अगला वेवफ्रंट बन जाता है. ओके, बट अगर जैसा हमने यहां पे पढ़ा कि अगर एक वेव फ्रंट के सामने एक ऑब्स्टिकल रख दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कि जो मैंने कहा कि अगर एक वेव फ्रंट के सामने एक ऑब्स्टिकल था तो उसने एक पार्ट ऑफ वेव फ्रंट को जाने से रोक दिया, या एक ऑब्स्टिकल ऐसा था जिसमें एक पिन होल था तो उसने उस पिन होल से तो वेव फ्रंट को जाने दिया, बाकी पोर्शन से ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. तो अगर एक वेव फ्रंट किसी ऑब्स्टिकल को की रास्ते में आने के बाद उसको क्रॉस करता है तो उस वेव फ्रंट के दो हिस्से हो जाते हैं, है ना. एक पार्ट जो रोक दिया जाता है और एक पार्ट जो उसको क्रॉस कर जाता है. तो उसको इस बेसिस पर हाइगन की वेव थ्योरी के बेसिस पर इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी, न्यू वेव फ्रंट विच इज फॉर्म्ड, इट इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेव्स, है ना. ये हाइगन का वेव थ्योरी कहता है. नाउ डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि व्हेन एन ऑब्स्टिकल इज केप्ट इन द पाथ ऑफ ए वेव फ्रंट, कि जैसे वो मैंने एक पिन होल बना के रख दिया था या एक ऑब्जेक्ट रख दिया था जिसके चारों तरफ से लाइट क्रॉस कर सकती थी, वट एवर इज द काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल. अगर एक ऑब्स्टिकल रख दिया गया है तो होता क्या है, पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट इज अलाउड. उस वेव फ्रंट का एक हिस्सा तो उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके चला जाता है, बट द ऑब्स्टिकल एंड ए पार्ट ऑफ दैट इज रिस्ट्रिक्टेड. उसका एक हिस्सा वो ऑब्स्टिकल रोक देता है, एक हिस्सा उसको क्रॉस कर जाता है, एक हिस्सा उसमें से रुक जाता है. जो रुक गया, जो पोर्शन वेव फ्रंट का रुक गया, जिसको जाने ही नहीं दिया गया, उससे अब कोई सेकेंडरी वेव्स तो जनरेट नहीं हो रही, या जनरेट हो रही तो वो आगे की तरफ तो बढ़ने नहीं दे रहा वो ऑब्स्टिकल. जो हिस्सा ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर गया, इट इज दैट पार्ट ऑफ वेव फ्रंट विच इज ओनली गोइंग टू क्रिएट द न्यू वेव फ्रंट. उसी का रोल बचा कि वो अगला वेव फ्रंट क्रिएट करे, है ना. कि इट्स लाइक कि एक बड़ी सोल्जर थी, सोल्जर्स की एक टीम होती है, एक बटालियन होती है, वो बटालियन में 100 लोग हैं, वो सारे के सारे जा रहे हैं आगे अपने एनिमी के ऊपर अटैक करने. लेकिन उस बटालियन में जब आर्मी दूसरी तरफ से जो आर्मी ओल्डने आती है तो उसमें से कुछ लोगों को हर्ट हो जाते हैं, मे बी कुछ शहीद हो जाते हैं. तो मान लीजिए उस 50 में से 100 में से 10 लोग शहीद हो गया, वो 90 का रोल है कि वो आगे की पूरी फ्रंट को संभाले. तो लाइक दैट एक वेव फ्रंट को अगर एक ऑब्स्टिकल ने पार्शियली रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो हिस्सा वेव फ्रंट का जो नहीं जा पाया वो तो खत्म हो गया. जो पोर्शन अलाउड है, जो जाने वाला है, वो अब अपना रोल प्ले करता है आगे के वेव फ्रंट को क्रिएट करने में. नाउ द क्वेश्चन इज कि वो जो पार्शियली अलाउड वेव फ्रंट है, क्या वो आगे वाला पूरा वेव फ्रंट क्रिएट कर पाएगा, या वो पार्शियली क्रिएट होगा, किसी डायरेक्शन में क्रिएट होगा, किसी डायरेक्शन में नहीं क्रिएट होगा. दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. सो इट वाज सेड दैट कि द सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अनरेस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द wave front now superposes either constructively or destructively along different directions. मतलब वो वेव फ्रंट से जो अब अनरिस्ट्रिक्टेड पार्ट जिसको अलाउ किया गया, वो वाला वेव फ्रंट का पार्ट जब आगे जाता है तो उससे जनरेट होने वाली सेकेंडरी वेव्स ऑल डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है. हमने ये भी पढ़ा था, सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस. वो सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं, मतलब उस डायरेक्शंस में भी ट्रैवल करती हैं जिस डायरेक्शन में वो जो रेस्ट्रिक्टेड वाला वेव फ्रंट को जाना था, उस हिस्से में भी वो जाते हैं. सो वो उस डायरेक्शन में भी जाते हैं और उस डायरेक्शन में जिस तरफ उनको जाना था उस तरफ तो जाते ही हैं. सो दे ओवरलैप, दे सुपरपोज विथ ईच अदर, दे कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली सुपरपोज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो कुछ डायरेक्शंस में जहां उनका कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो जाता है उस डायरेक्शन में तो वेव फ्रंट बना लेते हैं, बट जिन डायरेक्शंस में उनका सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव हो जाता है उन डायरेक्शंस में वो वेव फ्रंट
नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए डिफ्रैक्शन में जब हमने देखा कि जो आगे वेव फ्रंट बना वो पार्शियली किसी डायरेक्शन में था, किसी डायरेक्शन में नहीं था, तो वो एक इनकम्प्लीट सा वेव फ्रंट बना। मतलब वो जो वेव फ्रंट आगे हमने देखा था पैचेस में था, पंक्चर्ड था, वो एक्चुअली एक इनकम्प्लीट वेव फ्रंट है। कुछ डायरेक्शंस में बन पाया और कुछ डायरेक्शंस में नहीं बन पाया। तो वो किस डायरेक्शन में बन पाया, सेंट्रल मैक्सिमा बना, किस डायरेक्शन में नहीं बन पाया, जैसे फर्स्ट मिनिमा दिखाई पड़ा हमें। तो वी वुड लाइक टू नाउ अंडरस्टैंड कि वो कौन से डायरेक्शंस ऐसे हैं जिन डायरेक्शंस में वो मैक्सिमा बनाता है, वो कौन से डायरेक्शंस ऐसे हैं जिन डायरेक्शंस में वो नहीं बन पाया, तो डिस्ट्रक्टिव क्यों हुआ, मिनिमा क्यों बन गया उस तरह। वो सारे डायरेक्शंस निकालना चाहेंगे, उनके रीजन समझना चाहेंगे कि वो किसी डायरेक्शन में मिनिमा क्यों बना लेता है, किसी डायरेक्शन में मैक्सिमा क्यों बना लेता है। सो बेसिकली जो हमें फाइनल रीजन समझ में आया कि डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन था कि इंटरफेरेंस में हम कहते थे कि दो वेव फ्रंट्स होती थी, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज थे और वो दो वेव फ्रंट्स आपस में ओवरलैप हुए थे। तो इट वाज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट्स, कोहेरेंट वेव फ्रंट्स which resulted in the formation of dark and bright fringes को इंटरफेरेंस कहा था हमने। यहां पर एक ही वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट एक ही है, लेकिन वो वेव फ्रंट पार्शियली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, पार्शियली अलाउ कर दिया गया। रिस्ट्रिक्टेड पार्ट इज हैविंग नो रोल नाउ, वो तो खत्म हो गया। जो अलाउड पार्ट था उसमें से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेव्स थी, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स, the constructive and destructive superposition of secondary waves which results in the formation of diffraction fringes। तो मेन डिफरेंस अगर कहीं आपको मेंशन करना है कि डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में क्या फर्क है, तो आपको बताना है कि इंटरफेरेंस इज ए फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट कोहेरेंट वेव फ्रंट्स, whereas diffraction is a phenomena of superposition of secondary waves of one wave front which is partially restricted and partially unrestricted। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। उसमें जो आपने देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा बना, उसके चारों तरफ उसके बोथ साइड से एक मिनिमा बना, तो वो किस डायरेक्शन में मिनिमा बनाता है, किस डायरेक्शन में मैक्सिमा बनाता है, वो अब हम एक एक करके डिफरेंट केसेस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, see the first case। first case I have taken up at point O what happens where you got the central maxima along the direction of incident wave front। देखिए यहां पर क्या है, this was that slit, A भी वो स्लिट दिखाई पड़ रही है, वो एक नैरो सी स्लिट है और इसके ऊपर हमने क्या दिखाया, प्लेन वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट एंड सपोज द वेवलेंथ ऑफ दैट प्लेन वेव फ्रंट इज लैम्डा, इट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। और वो कैसे प्लेन वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हुई थी, वो लेंस लगाकर एक्सेट्रा, वो समझ में आया आपको, है ना। ये जो स्लिट है, दिस इज हैविंग अ विड्थ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर। इसकी ठीक सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है एंड सपोज जो स्क्रीन पर हम लाइट को रिसीव करने वाले हैं वो फोकस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर हमने एज ए कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और वो कॉन्वेक्स लेंस जो भी लाइट इसके ऊपर रिसीव होने वाली है उसको वो इस पर फोकस करते हैं, सो दैट हम एक पॉइंट मार्क कर सके कि वो सेंट्रल मैक्सिमा एग्जैक्टली, सेंट्रल मैक्सिमा वैसे एक स्पॉट है ना, लेकिन अगर वो सारा स्पॉट पे जो लाइट आ रहा है उसको कन्वर्ज कर दिया था, तो वो पॉइंट सेंटर मोस्ट पॉइंट कहां है उसको हमने एक लेंस की हेल्प से कन्वर्ज कर दिया। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ये ए बी के बीच में जो डॉटेड लाइन दिखाई पड़ रही है, ये वो अनरिस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ वेव फ्रंट है जो ये ऑब्स्टिकल अलाउ कर रहा है। ये वेव फ्रंट इस ऑब्स्टिकल के ऊपर यहां अबव ए एंड अबव बी वहां पर भी है, लेकिन वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लेकिन ए और बी के बीच में जो पार्ट ऑफ वेव फ्रंट है वो अलाउड है, वो इसमें से क्रॉस करने के लिए अलाउड है। नाउ क्या हमने पढ़ा कि इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल इधर मार्क किया है, सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट सी, है ना, एक पॉइंट सी मान के, इस पॉइंट से सेकेंडरी वेव्स जनरेट होती है। हाइगन्स वेव थ्योरी यही कहती है। अब सेकेंडरी वेव्स वी सेड ट्रैवल इन ऑल द डायरेक्शंस। अगर मैंने ये सेकेंडरी वेव जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ किया है, तो ये सेकेंडरी वेव इस पॉइंट सी से जनरेट हुआ, तो किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ भी जा रहा है, ये इस तरफ भी जा रहा है ना, जितने भी डायरेक्शंस पॉसिबल है सभी डायरेक्शंस में जा रहा है। तो ये इस तरफ जा, ऐसा इस पॉइंट से हो रहा है, तो ऐसा इस ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है हर पॉइंट से ऐसा हो रहा होगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ दीज सेकेंडरी वेव्स, ट्रैवलिंग ऑफ दीज सेकेंडरी वेव्स वन बाय वन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है। मैं सारे डायरेक्शंस को एक साथ नहीं ले रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए वन बाय वन ले रहा हूं कि इस पॉइंट से जो सेकेंडरी वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इस पॉइंट से भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इस पॉइंट से भी, और इन सभी पॉइंट से दूसरे डायरेक्शंस में भी ट्रैवल कर रहा है। दूसरे डायरेक्शंस को अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट,
चलते हुए ये सारे सेकेंडरी वेव्स जब स्क्रीन पर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? अब जब इस डायरेक्शन में चलते हुए ये एक सेकेंडरी वेव जा रहा है, ये जो मैंने डिफरेंट लाइंस दिखाई हैं, दीज आर डायरेक्शन अलोंग विच दीज सेकेंडरी वेव्स आर ट्रैवलिंग। रिमेंबर दैट ये इसके अलावा और दूसरी डायरेक्शंस में भी जा रही हैं, वो डायग्राम में इस वक्त नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाती हुई सारी सेकेंडरी वेव्स नेचुरली सब स्क्रीन पर एक साथ पहुंचेंगी। सबके लिए स्क्रीन डिस्टेंस जो है वो सेम है। सपोज दैट स्क्रीन डिस्टेंस जो मैंने दिखाया वो कितना है, D, कैपिटल D, और ये जो स्लिट का विड्थ है इसको हम जनरली स्मॉल d से डिनोट करेंगे, ये कैपिटल। तो इसका डायमेंशंस भी नोट कर लीजिए। स्लिट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर, ये जबकि स्क्रीन डिस्टेंस जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम 1 मीटर, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी वेव्स जब स्क्रीन पर पहुंची और उसको मैंने कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर दिखा दिया, तो ये सारे सेकेंडरी वेव्स स्क्रीन तक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचेंगी। तो ये बात देखिए लिखे, along this direction all secondary waves which originate from all the points between A and B travel equal distance to reach at the screen। वो सब स्क्रीन तक सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचती है। अगर सबके लिए डिस्टेंस सेम है, सेम वेव फ्रंट से ट्रैवल कर रही हैं, वेव फ्रंट का मतलब होता था दैट सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। तो इसका मतलब सारी सेकेंडरी वेव्स ए से लेकर बी तक जितनी चलना शुरू करती हैं पॉइंट ओ की तरफ, सब सेम फेज से चलना शुरू करती हैं। मतलब अगर ए से क्रेस्ट चला तो बी से भी क्रेस्ट, सी से भी क्रेस्ट, सब क्रेस्ट जा रहे हैं एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और सारे क्रेस्ट एक साथ पहुंचने वाले। अगर सारे क्रेस्ट ही एक साथ पहुंचेंगे, क्रेस्ट ओवरलैपिंग विद क्रेस्ट होगा तो क्या बनेगा, वो एक लार्ज क्रेस्ट बन जाएगा। तो यही बात देखिए कि दैट पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी टू सेकेंडरी वेव्स, ए से लेकर बी के बीच में जितने भी सेकेंडरी वेव्स हैं, इसमें से किसी भी एक पेयर को ले लीजिए, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 0। दैट मीन्स दे ऑल सुपरपोज कंस्ट्रक्टिवली। कोई डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की बात ही नहीं हो रही। इसलिए पॉइंट ओ पर हमें जो मिला वो एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का रिजल्ट मिला, दैट इज ए ब्राइट फ्रिंज, और वो एक सेंट्रल मैक्सिमा के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ रहा है, विच इज द ब्राइटेस्ट फ्रिंज। वहां क्योंकि कोई डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ ही नहीं, सो इट इज द ब्राइटेस्ट फ्रिंज विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये तो बात हुई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट। नाउ लेट अस सी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिला था, जिसको मैंने अभी यहाँ एक पॉइंट दिखा दिया, सेंट्रल मैक्सिमा जो मिला था, इस सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड्स हमें क्या मिले थे, 2 डार्क पैचेस मिले थे, डार्क फ्रिंजेस। तो वो डार्क फ्रिंजेस कितने एंगल पर थे, इस इंसिडेंट वेव फ्रंट से कितने एंगल पर, मतलब ये सेकेंडरी वेव्स ही तो थी उस डायरेक्शन में जाते हुए। मैंने दिखाया था ना, कुछ एक डायरेक्शन था जिस तरफ सेकेंडरी वेव नहीं थी, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट ही नहीं थी। तो वो डायरेक्शन कौन सा है जिस डायरेक्शन में सेकेंडरी वेव्स जाती तो हैं, सेकेंडरी वेव्स जाती तो हैं लेकिन वेव फ्रंट नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती वेव फ्रंट? उस डायरेक्शन में वेव फ्रंट का ना बनना, वेव फ्रंट का ना बनना मतलब क्या है कि सेकेंडरी वेव्स जिनका काम था वेव फ्रंट को बनाना, वो डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो वो कौन सा एंगल है जिस डायरेक्शन में वो सेकेंडरी वेव्स ए से लेकर बी तक, जो सेकेंडरी वेव्स ओ की तरफ तो कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करते हुए बनाती है वेव फ्रंट, लेकिन वो कौन सा डायरेक्शन है जिस तरह वो सेकेंडरी वेव्स, ऑल द सेकेंडरी वेव्स बिटवीन ए टू बी ट्रैवल तो करती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट एक डार्क फ्रिंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज द सेकेंड केस, लेट अस डिस्कस। ओके, केस 2 लेते हैं उसके लिए। See, this is the second case along which you get the first minima। सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ एक एक मिनिमा था, तो वो मिनिमा हमें कहां मिला, दिस इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस। सपोज वो मिनिमा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, वो जो सेंट्रल मैक्सिमा का डायरेक्शन था, उससे θ1 एंगल पे मिला। जैसे मैं कह रहा था कि हर पॉइंट से सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, वो हर तरफ ट्रैवल कर रही थी, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए वो सेंट्रल मैक्सिमा बनाती हैं, वो बात हो चुकी। नाउ लेट अस टेक अप अ सिचुएशन कि इस पॉइंट से सेकेंडरी वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो इस डायरेक्शन में हर पॉइंट से सेकेंडरी वेव ट्रैवल करता है। इस पॉइंट से अगर इस इंसिडेंट डायरेक्शन से θ1 एंगल पर एक सेकेंडरी वेव जा रहा है, तो इस पॉइंट से भी इंसिडेंट से सेकेंडरी वेव θ1 एंगल पर जा रहा है। तो ये सारी सेकेंडरी वेव्स इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन से θ1 एंगल पर जाती हुई सेकेंडरी, रिमेंबर सेकेंडरी वेव्स की बात चल रही है ना। ये सारी सेकेंडरी वेव्स अगर इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इस तरफ जाते जाते वो यहाँ पर एक वेव फ्रंट क्यों नहीं बना पाती हैं, वो मिनिमा क्यों बन जाता है, मतलब वहां पर वो वेव फ्रंट खत्म क्यों हो जाता है, गायब क्यों हो जाता है, वेव फ्रंट ना बनना। व्हाट डू यू मीन कि वेव फ्रंट नहीं बना? वेव फ्रंट वहीं नहीं बन रहा था जहां पर कोई डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ हो। अब ये सेकेंडरी वेव्स इस डायरेक्शन में कब सेकेंडरी वेव्स मतलब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही थी, तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे किया गया कि जब पॉइंट ए से, जो एक एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्लिट था, और बी जो दूसरा एक्सट्रीम एंड था, व्हेन सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम एक्सट्रीम एंड्स ए एंड बी ट्रैवलिंग अलोंग P1
at an angle of theta 1 have a path difference of, कितना दिख रहा है डायग्राम में, देखिए ये पाथ डिफरेंस कितना दिख रहा है, they have a path difference of lambda. ठीक है, चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो. That when secondary waves originating from the points A and B have a path difference of lambda, first minima is obtained on the screen. At point P the first minima is obtained. Okay, फिर से बोल देता हूं. When secondary waves originating from the two extreme points A and B have a path difference of lambda, the first minima is obtained on the screen at point P1. तो ऐसा क्यों कहा गया भाई, इस तरह से क्यों कहा गया कि लैम्डा पार्ट डिफरेंस होने से वहां पर मिनिमा बन जाएगा? इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया? इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया. देखिए मैंने यहाँ एक और पॉइंट मार्क किया है इन बिटवीन, सेंटर मोस्ट पॉइंट, इस स्लिट का सेंटर मोस्ट पॉइंट. सपोज एक पॉइंट मैंने मार्क किया ए डैश. तो स्लिट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. लेट द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. ओके, स्लिट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ए डैश एंड ए डैश बी. दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया. अब देखिए जरा आप लॉजिक लगाइए इसमें कि अगर पॉइंट ए से ओरिजिनेट होने वाली सेकेंडरी वेव पॉइंट बी से ट्रैवल करने वाली सेकेंडरी वेव, कैन यू सी यहां से जो दो सेकेंडरी वेव्स जा रही हैं, पॉइंट ए के लिए P1 क्लोजर होगा, पॉइंट बी के लिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है. कितना ज्यादा हो रहा है? वो है लैम्डा. अगर पॉइंट ए और बी से सेकेंडरी वेव्स की जो दूरियां हैं पॉइंट P1 की वो थोड़ी सी अलग हैं और वो डिफरेंस लैम्डा है, तो इसका जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है वहां से सेकेंडरी वेव जो जा रही है उसका ए और ए डैश के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? अगर ये मिड पॉइंट है तो ए और ए डैश से जाने वाली सेकेंडरी वेव्स का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2, उसका आधा, है ना. So this is what we have to write, that we divide the slit into two equal halves, A dash and A dash B. You may note down, slit is divided into two equal halves, A dash and A dash B. ठीक है. Then if path difference between secondary waves from points A and B is lambda, then path difference between secondary waves from points A and A dash at P1 is lambda by 2. ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है. पाथ डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम पॉइंट्स A and A dash at P1 will be lambda by 2. अब जरा याद करो, lambda by 2 पाथ डिफरेंस होना कंस्ट्रक्टिव था या डिस्ट्रक्टिव होना होता की कंडीशन थी? याद करो, इट वॉज एक्चुअली अ कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. तो देखिए पॉइंट O पर तो कोई डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ ही नहीं, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि पॉइंट ए से ओरिजिनेट होने वाली सेकेंडरी वेव, ए डैश से होने वाली सेकेंडरी वेव्स, इन दोनों का पॉइंट P1 पर पहुंचने पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है. तो ये दोनों सेकेंडरी वेव्स डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करती है. मतलब ये दोनों सेकेंडरी वेव्स मिलकर पॉइंट P1 पर कोई इल्यूमिनेशन, कोई वेवफ्रंट नहीं बनाती हैं. ये तो हुई पॉइंट ए और ए डैश की बात. लेट अस टेक अप अनदर पॉइंट जस्ट बिलो ए. जैसे यहां पर एक पॉइंट है, ए से नीचे एक पॉइंट मार्क किया मैंने, तो जितना नीचे ए से एक पॉइंट मार्क किया उतना ही नीचे ए डैश के भी नीचे एक पॉइंट मार्क करते हैं कि जितनी दूरी ए डैश की है उतनी दूरी ये दो नए पॉइंट्स की भी. तो अगर ए और ए डैश का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 था, तो इन दोनों पॉइंट से निकलने वाली सेकेंडरी वेव्स का पार्ट डिफरेंस भी लैम्डा बाई 2 होगा. तो मतलब क्या हुआ कि ए और ए डैश के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं अपर हाफ में, हाँ, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट नीचे वाले हाफ में होगा. जैसे इस पॉइंट के लिए ये होगा, इस वाले पॉइंट के लिए ये होगा, ए डैश के लिए बी है. देखिए ए डैश और बी के बीच का पार्ट डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2. सो फॉर एवरी पॉइंट इन बिटवीन ए एंड ए डैश प्रोड्यूसिंग ए सेकेंडरी वेव, देयर लाइज ए पॉइंट इन द लोअर हाफ ए डैश बी such that secondary waves produced from such a pair is equal to lambda by 2. ठीक है, फिर से बोल देता हूं मैं. For every point in the part A, in the upper half A dash, there lies a point in the lower half A dash B. Okay, such that the secondary waves produced by those pairs of points when reach at point P1 have a path difference of lambda by 2. All such pairs, जितने भी pairs बनेंगे, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से, all such pairs superpose destructively to produce no illumination at P1, no wavefront at P1. तो upper half as if lower half से destructively superimpose कर जा रहा है, इसलिए वहां पर कोई illumination नहीं मिल रहा, वो एक डार्क पॉइंट बन गया, है ना. बट यू कैन अंडरस्टैंड कि देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी भी तो है.
इनकी सेकेंडरी वेव्स का पाथ डिफरेंस तो लैम्डा है और लैम्डा इज ए कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। बट ऐसा एक ही पेयर है, सिर्फ एक ऐसा पेयर है जो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज कर रहा है। तो पॉइंट P1 पर जो इल्यूमिनेशन होगी वो बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, मतलब इट इज ए डार्क पॉइंट। समझ में आया भाई कि पॉइंट P1 डार्क क्यों बना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी वेव्स they travel in this direction in pairs in such a way that they have a path difference of lambda by 2, which satisfies the condition of minima, and so all such pairs destructively superpose to produce no illumination at P1. Clear हुआ ये बात? तो let us consider this situation and derive it in the form of mathematics. Let us see it. देखिए पॉइंट A से और एक मैंने पॉइंट M मार्क किया। लेट दिस पॉइंट A एंड पॉइंट M, A P1 से जितना दूर है, एक पॉइंट P1 से मैंने एक मार्क किया M, वो भी उतना ही दूर है। मतलब ये वेव फ्रंट बनना था, ये वेव फ्रंट जो बनना था वो नहीं बना। तो मतलब A और M आर एट सेम डिस्टेंस। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस BM दिखाई पड़ रहा है, इस वाली पॉइंट से आने वाली सेकेंडरी वेव में एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस मान लेते हैं लैम्डा है। ठीक है। अब अगर ये वेव फ्रंट है, ये डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव्स है, मतलब डायरेक्शन ऑफ रेज होने वाली है ये, तो यू नो रेज एंड वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर। तो ये तो हुआ 90 डिग्री एंगल, है ना, 90 डिग्री एंगल, या ये अंदर वाला एंगल 90 डिग्री है। अब अगर ये रे थी तो ऐसा वेव फ्रंट था, अब अगर ये रे है तो ऐसा वेव फ्रंट है। तो जितना एंगल इन दोनों रेज के बीच में होना है, उतना ही एंगल इन दोनों वेव फ्रंट्स के बीच में भी होना चाहिए। दैट मीन्स दिस एंगल BAM, ये जो ऊपर एंगल दिखाई पड़ रहा है, दिस एंगल मस्ट बी सेम एज θ1। तो ये देखिए मैं लिखा पाथ डिफरेंस BM कितना है, लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा के लिए, है ना। और इन केस ऑफ इन ट्राइंगल BAM, एंगल BAM इज θ1। तो व्हाट इज sin θ1 इन दिस ट्राइंगल? अगर इस ट्राइंगल से sin θ1 डिटरमाइन करो तो क्या होगा? sin θ इस ट्राइंगल के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मींस BM अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AB। तो BM अपॉन AB, BM क्या है? फर्स्ट मिनिमा के लिए BM हम क्या रहे? इट इज लैम्डा एंड AB मींस D। ठीक है, इट इज लैम्डा बाई D। तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन हमें ये मिली। बट लाइक के केसेस में ये एंगल्स जिस डायरेक्शन में हमें फर्स्ट मिनिमा मिलता है बहुत बहुत स्मॉल एंगल्स में मिलता है। तो इफ आई कंसिडर θ1 बीइंग वेरी स्मॉल, sin θ1 इज अप्रोक्सीमेटली सिंपली θ1 in radians. तो we write θ1 is equals to lambda by d is the condition of first minima. So first minima is obtained at an angle of θ1 radians, which is equals to lambda by d. This is a rough value, but exactly it is sin θ1 is equals to lambda by d. Is that clear to everybody? Reason for first minima. ठीक है, तो similarly we can derive for second minima. Let us see the case 3.